देखो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आपको कहता है ए बी सी डी रोम्बस दिखती है। सब तो पहले ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ए बी सी डी की गिवन है रोम्बस P Q R and S are the midpoint on these sides। P is the midpoint है, Q is the midpoint है, is the midpoint R है and is the midpoint S है। P Q R S are the midpoint of the sides। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कि जो क्वाड्रिलेटरल P Q R S बन गई, जो P Q R S बन गई किने शो करो एक ही है रेक्टेंगल। इसमें की शो करना अपने रेक्टेंगल। सब तो पहले ਆਪਾਂ गिवन लिखते हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन किया है कि जो A B C D है वो रोम्बस है। गिवन A B C D is a rhombus and we have to prove that ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ कि जो P Q R S है वो की है रेक्टेंगल है। P Q R S is a rectangle। एनी गल क्लियर है। क्वेश्चन क्या है दोबारा से देखो, कहते ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी की एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस इस दे की ने मिड पॉइंट है ते अपन ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ P ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ए बी ਦਾ, Q ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ B C ਦਾ, R ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ D C ਦਾ ਐਂਡ S ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ A D ਦਾ। कहते P Q R S की ने इस दे मिड पॉइंट्स ने और सॉरी ए बी सी डी रोम्बस है। P Q R S इन्हां दे की ने मिड पॉइंट्स है। कहते शो करो जो P Q R S है वो की है रेक्टेंगल। ਹੁਣ अगर P Q R S ਨੂੰ रेक्टेंगल शो करना है ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਲਲ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल च P is the midpoint of AB, Q is midpoint of AC। अगर P is the midpoint है, Q is the midpoint है, तब PQ parallel AC and PQ half of AC। लिख सकते हैं same as in triangle ADC, S is the midpoint of AD, R is the midpoint of BC, then SR parallel AC and SR equal half of AC। ठीक है। ਹੁਣ देखो PQ is the parallel, SR is the parallel, तब PQ ਤੇ SR आपस की हो गए पैरेलल हो गए। PQ AC ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, SR भी AC ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, तब PQ ਤੇ SR आपस की हो गए इक्वल हो गए। मतलब ਇਹ प्रोसेस जो अपने पिछले क्वेश्चन च ਕੀਤੀ है सेम टू सेम करनी है। और लिखिए जरा सब तो पहले अपन की किया है प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P is midpoint of AB, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC। ठीक है। सो बाय मिडपॉइंट थ्योरम वैसे अगर टाइम होवे ਤਾਂ पूरा लिख दियो। की लिख दियो कि अगर किसी ट्रायंगल दे विच अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो टू साइड्स दे मिड पॉइंट्स ਨੂੰ जॉइन करके बनी है। If in a triangle a line segment is drawn by joining the two midpoint of the two sides, it will be parallel to the third side and half of the third side। और थर्ड साइड देखी होगी पैरेलल होगी तो उसकी होगी हाफ भी होगी। तो आप की लिख सकते हैं तो कि जो पी क्या हुआ है वो की है AC दे पैरेलल है एंड जो पी क्या हुआ है वो AC दे की है हाफ। पहला और तक दी कहानी क्लियर है। जो उन्हें कितना सेम है आप इस ट्रायंगल यूज करना है इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC S is midpoint of, S is the midpoint है, S is midpoint of AD, S is midpoint of AD, R is midpoint of DC, S midpoint है AD ਦਾ, R midpoint है DC ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by midpoint theorem। so by midpoint theorem ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ SR ਹੈ ਉਹ ਪੈरेलल ਹੋਗੀ AC ਦੇ ਤੇ ਜੋ SR ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਆਫ ਹੋਗੀ ਕਿਸ ਦੇ AC। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ ABCD ਇੱਕ ਰੋम्बस ਗਿਵਨ ਹੈ, PQRS ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ PQRS ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ PQ ਪੈਰਲਲ AC, PQ ਹਾਫ ਆਫ AC, SR ਪੈਰਲਲ AC, SR ਹਾਫ ਆਫ AC। तो ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PQ SR ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ PQ SR ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ।
तो देखो आप की लिख सकते हैं पी क्यू एसी दे पैरेलल है, एस आर एसी दे पैरेलल है, तो जो पी क्यू है वो एस आर दे की हो चुकी है पैरेलल हो चुकी है। जो पी क्यू है वो एसी का हाफ है, जो एस आर है वो भी एसी का हाफ है, तो पी क्यू किस दे इक्वल हो गया एस आर दे इक्वल। पी क्यू एस आर दे पैरेलल है, पी क्यू एस आर दे इक्वल है, तो आप की लिख सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस अपनी की हो चुकी है पैरेललोग्राम हो चुकी है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू इक्वल एस आर, तब पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। एनी क्लियर? हुन पैरेललोग्राम प्रूफ तो होगी, रेक्टेंगल प्रूफ करने की कितनी कसर है, ए वाला एंगल ਨੂੰ 90 करना पड़े, ए वाला एंगल ਨੂੰ ਕੀ करना पड़े 90। एक इज द मोस्ट शॉर्टकट मेथड है 90 प्रूफ करना। देखो जरा ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਰੋम्बस ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਰੋम्बस ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਜੋ ਰੋम्बस ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹ 90 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 90 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ 90 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 90 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ, अगर इसनों तुसी पैरेललोग्राम शो कर दो तो आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम दे अपोजिट एंगल की होंदे ने इक्वल। ए 90 है कि ते 90 आ जाऊगा। कांसेप्ट समझ लो। अपने पी क्यू आर एस नु पैरेललोग्राम तो शो करता ते रेक्टेंगल शो करने लिए कितनी कसर हैगी, ए वाला एंगल नु 90 शो करना है। मेनू पता है रोम्बस दे जो डायगोनल होंदे हैं वो 90 ते इंटरसेक्ट करदे ने। ए 90 हैगा ते इस नु 90 प्रूव करना है, ए 90 हैगा इस नु 90 प्रूव करना है। अगर मैं इस नु पैरेललोग्राम शो करदा, अगर मैं इसनों पैरेललोग्राम शो करदा, पैरेललोग्राम दे अपोजिट एंगल्स की होंदे ने इक्वल होंदे ने, ए 90 हैगा ते भी 90 प्रूफ हो जाऊगा। हुन इसनों पैरेललोग्राम किवें शो करिए, इहनू कुछ नाम दे दो एम एन ओ। ठीक है, सब तो पहले अपन की लिखांगे, पैरेललोग्राम तो शो हो गया, अपन कहांगे एस डायगोनल ऑफ रोम्बस, एस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के किंदे परपेंडिकुलर होंगे। थस जो एंगल ए एंड बी है, थस जो एंगल ए एंड बी है वो कितना आ गया अपने को 90 डिग्री। ए वाला एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ए 90 हो चुका है ते अपन ने टू प्रूफ की करना है, अपन ने टू प्रूफ की करना है ओ पी एम नु 90 प्रूफ करना है। ओ पी एम नु अपन ने की प्रूफ करना है 90। मतलब ना मेन एम लेके चलो, रोड लर्निंग नहीं करनी, बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर होवे। पी क्यू आर एस में अपने रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। पहला ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम आप प्रूफ कर चुके हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ रेक्टेंगल प्रूफ करने ਲਈ कमी ਇੰਨੀ ਕਰੇਗੀ ए वाला एंगल ਦੀ 90 ਮੈਨੂੰ ए वाला 90 पता है ਤੇ ਇਹ 90 मैंने प्रूफ करना है। अगर मैं ਇਸ ਨੂੰ पैरेललोग्राम शो करता तो मेरा काम हो जाऊगा। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ पैरेललोग्राम ਕਿਵੇਂ शो ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਸ ਨੂੰ पैरेललोग्राम ਕਿਵੇਂ शो करेंगे। पी क्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ AC ਦੇ ਕੀ ਹੈ पैरेलल है, पी क्यू की है AC दे पैरेलल। अगर पी क्यू AC दे पैरेलल है तब PM भी तो ON दे पैरेलल होगी, तब PM भी किसके पैरेलल होगी ON दे पैरेलल होगी। क्योंकि देखो अगर पूरी लाइन पूरी दे पैरेलल है तो इसका छोटा सा पार्ट इधर छोटे से पार्ट भी क्या होगा पैरेलल होगा। मैं नहीं कह रही कि मिड पॉइंट है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूरी लाइन पूरी दे पैरेलल है तो nth पार्ट भी nth पार्ट दे पैरेलल होगा। उसी प्रकार अगर nth लाइन इससे पैरेलल है, मतलब अगर SP किससे पैरेलल है DB दे पैरेलल है, अगर SP किससे पैरेलल है DB दे, अगर SP DB दे पैरेलल है तो जो OP है OB NM दी होगी पैरेलल होगी, OP भी किससे पैरेलल होगी NM दे। ये लाइन इस दे पैरेलल है, A1 लाइन इस दे पैरेलल है, तो की बन चुकी है अपनी पैरेललोग्राम बन चुकी है। एक ही बन चुकी है PMNO की बन चुकी है अपनी का पैरेललोग्राम। क्योंकि सुनो जरा जो OP है वो MN दे पैरेलल होगी, जो PM है वो ON दे पैरेलल होगी। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤਾਂ PMNO ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਇਨ ਅ quadrilateral opposite sides are parallel then it is a parallelogram। क्योंकि अगर किसी पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती है तो की बन जाता है पैरेललोग्राम बन जाता है। और ये रीजन लिख के उसे लिख सकते हो OPMN इज पैरेललोग्राम। OPMN की बन चुकी है पैरेललोग्राम बन चुकी है। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ 90 है गया सी, ਇਹ 90 शो हो गया।
मैंने बहुत गल्लां लिखियां नहीं, सिर्फ बोलियां ने क्योंकि थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, लेकिन तुसीं उन्हां नूं लिख लो। तो मेन कंसैप्ट की है, सब तो पहले पी क्या आर एस ने अपने पैराग्राम शो किया, ओके। फिर लिखियो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एस पी क्या एंगल 90, इस एंगल को की प्रूव करना है 90। ये 90 मैंने पता है, इनू 90 शो करना है, ये 90 पता है, इनू 90 शो करना है। अगर इसनू पैराग्राम शो करदा, पैराग्राम दे पोस्ट एंगल इक्वल होंदे ने, ये 90 अगे 90 आ जाऊगा। इनू पैराग्राम किवें शो करा जावे, क्योंकि पी क्या एसी दे पैरेलल है तो पीएम भी ओएम दे पैरेलल होगी, क्योंकि एसपी डीबी दे पैरेलल है तो ओपी भी एनएम दे पैरेलल हो। पीएम पैरेलल ओएन, पीओ पैरेलल एनएम, पीएम पैरेलल ओएन, ओपी पैरेलल एनएम, तब पीएमएनओ की शो हो चुकी, अपना पैरेललोग्राम शो हो चुका है। और अगर ये पैरेललोग्राम शो हो गया, ए 90 ते भी क्यू 90 आ चुका। पैरेललोग्राम पहले ही सी, एक एंगल 90 होना गया, तब पीएमएनओ इज अ सॉरी ए 90 आ गया, तब पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि एक एंगल 90 आ चुका, एक एंगल 90 आ चुका। पैरेललोग्राम में पहले ही प्रूव करता सी, तब पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। लिख लोगे कि लिख के दसो कुछ वो। थर्ड क्वेश्चन देखो जी, ये बिल्कुल उस क्वेश्चन का रेसिप्रोकल है कुछ होगी। कहते एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी थोड़े को कोई रेक्टेंगल है, ए बी सी डी की रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस are the midpoint of the sides. Show that P, Q, R, S, P, Q, R, S ਨੂੰ अपने की शो करना है रोम्बस। देखो पहला तो वही राम कहानी लाइन विच बना के पहला P, Q, R, S ਨੂੰ की प्रूव कर देंगे, अपन पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। वो सारी कहानी मैं नहीं लिखूंगा, एक रिपीट कर देना। P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC. So by midpoint theorem, PQ parallel AC and PQ half of AC. Same as in triangle ADC, S is midpoint of AD, R is midpoint of DC. So SR parallel AC, SR half of AC. From equation 1 and 2, PQ parallel SR, PQ equal SR. So PQRS is a parallelogram. पिछले दो क्वेश्चनों की तरह बिल्कुल सेम टू सेम पूरी कहानी लिखनी। ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮਬਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਬਸ। ਰੋਮਬਸ ਲਈ ਮੈਨੇ ਪੀ ਕਿਊ ਨੂੰ ਐਸਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैंने पी क्या हूं किस दिक्कत शो करना है सर, क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल हो चुकी है नहीं। अगर मैं पी क्या हूं एसआर अपोजिट पी क्या हूं एसपी इक्वल शो करदा, मेरा काम हो जाऊगा। क्योंकि अगर मैं पी क्या हूं एसपी इक्वल शो करदा, एसपी इक्वल शो करदा, पी क्या मेरी एसआर इक्वल हैगी है, एसपी मेरी आर क्या इक्वल हैगी है, तब पी क्या और एस मेरा रोम्बस बन जाऊगा। मतलब मैंने की शो करना है पी क्या हूं एसपी इक्वल, ते फील करो पी क्या एसपी इक्वल हो ही पई है। किमें होई पई है देखो, ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, किमें कॉन्ग्रुएंट है, पी मिड पॉइंट है ए बी दा, ता एपी इक्वल पीबी, वन थिंग मिल गई, एपी इक्वल पीबी क्योंकि पी मिड पॉइंट है। सेकंड थिंग क्योंकि एडी बीसी दे इक्वल है, क्योंकि अपन की देखिए रेक्टेंगल देखिए एडी इक्वल बीसी है, ता हाफ ऑफ एडी ते हाफ ऑफ बीसी वापस क्यों होंगे इक्वल होंगे, दैट्स मीन एएस के दे इक्वल हुआ, बी क्या होंगे। थर्ड थिंग देखो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ एस ए एस रूल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲ पी क्या इक्वल एसपी। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਮ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਬਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਮਬਸ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। सब तो पहले आप पैरेललोग्राम शो करेंगे कोई पिछले दो क्वेश्चनों की तरह। पैरेललोग्राम शो करना तो हम अपने लिए कुछ नहीं है, बाय हाथ का खेड़ है, मिनट से जल्दी जल्दी कर देंगे कि पैरेलल है हाफ है, पैरेलल है हाफ है, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम होगी, जो भी है। हम अपनी इसको रोम्बस शो करना है, मतलब पी क्या हूं एसपी इक्वल शो करना है कि पी क्या हूं एसपी इक्वल होया पे है ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके आओ देखिए। मैं ऊपर लिखा कहानी एम लिख देना कि पी क्या आर एस इज अ पैरेललोग्राम।
ओके मैं काफी लंबा प्रोसीजर तो करके फिर लिखेंगे अपन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. Now we have to prove that now we have to prove that PQRS is a rhombus. To prove this, it's sufficient to prove P क्या इक्वल एस पे अपनी लैंग्वेज लिख दो, सेम चेक नहीं मारना. इधर बस तुम्हें समझा रहे हैं कि अपन नु पैराग्राफ प्रूफ कर चुके हैं तो इसनु रोम्बस प्रूफ कर ले. सिर्फ इतना को प्रूफ करना काफी है कि जो P क्या हुआ है SP इक्वल है क्या. तब P क्या नु SP इक्वल शो करने वास्ते P क्या नु SP इक्वल शो करने वास्ते अपन ट्रायंगल लेके चल पने हैं. इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल इधर BQP उन अपन लिख रहे हैं कि जो AP है वो मेरी BP दे इक्वल है. क्यों? क्योंकि P is midpoint of AB. P किसका midpoint है? AB का. P is midpoint of AB. उसके बाद जो AS है वो BQ दे इक्वल है. जो AS है वो BQ दे इक्वल है. पीछे रीजन पूरी कहानी लिखी हो कि मैं क्योंकि AD इक्वल BCC opposite sides of rectangle half of AD किससे इक्वल होगा? हाफ ऑफ BC दे. ਤਾਂ AD ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣਾ AS ਤੇ BC ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ? BQ. ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦੋ क्योंकि S is midpoint of AD. S is midpoint of AD ਤੇ Q is midpoint of BC. समझ रहे की करी जाने की लिखी जाने आ कांसेप्ट क्लियर हो रहा है. अपन इन्हें रोम्बस शो करना है मतलब P Q S P इक्वल शो करना है. P Q S P इक्वल किमें शो करांगे? ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके. कॉन्ग्रुएंट किमें हो गया? AP इक्वल BP है, AS इक्वल B क्या हुआ है? ते एंगल PAS एंगल A लिख दो बिल्कुल नहीं. एंगल A इक्वल एंगल B 90 डिग्री. एंगल A इक्वल एंगल B 90 डिग्री. पीछे रीजन लिख दो. क्यों? क्योंकि all एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90. All angles of rectangle are 90 degree. Thus we can say that जो ट्रायंगल ASP है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? नाम चेक करो. A इक्वल B है तो A की जगह पे B आएगा. अगर A की जगह पे B आ रहा है तो P की जगह पे P आएगा. P की जगह पे P आएगा. अगर A की जगह पे B आ रहा है तो S की जगह पे क्या हुआ होगा? S की जगह पे क्या हुआ है? BQP. ASP किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? BQP. तो अपन लिख सकते हैं कि जो PS है वो किसके इक्वल है? PQ दे. PS है वो किसके इक्वल है? PQ दे बाय CP. ठीक है. ते अपना PS इक्वल PQ हो गया. ते PS तो अपना RQ दे इक्वल है ही गया. PS तो अपना RQ दे इक्वल है ही गया. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. ते मोरओवर जो PQ है वो किसके इक्वल SR दे. सेम रीजन तो चारों साइड आपस में होगी इक्वल. PQ क्या हुआ? RS ते SP आपस में होगी इक्वल. सो PQRS इज अ rhombus. तब PQRS की सोच के अपना समझ आ रहा है. क्लियर है? इसमें rhombus कैसे प्रूव करना है? क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन है कह रहे ABCD इज अ ट्रेपेजम. गिवन किया ABCD is a trapezium ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ in which AB parallel BC. AB ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? DC ਦੇ. ABCD trapezium ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ DC ਦੇ. BD ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ diagonal. E is midpoint of AD. E is midpoint of AD. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਥ्रू E पैरेलल टू AB मतलब EF पैरेलल ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AB ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ टू प्रूफ करना है कि जो F है
ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ BC ਦਾ। पहला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम एग्जांपल है। E मिड पॉइंट दे रखा है ते F मिड पॉइंट शो करना है। तुसी देखो सब तो पहले ਆਪਾਂ ਇਹ ट्रायंगल ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, प्लेन ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल च E मिड पॉइंट हैगा है, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ G। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾनिंग ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ E मिड पॉइंट हैगा है ਤੇ ਜੋ EG ਹੈ ਉਹ AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। E मिड पॉइंट है AD ਦਾ ਤੇ ਜੋ EG ਹੈ ਉਹ AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤਾਂ GB ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ DB ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? सेम टू सेम एग्जांपल है, कोई भी फर्क नहीं, एग्जांपल ला लो। E मिड पॉइंट है AD ਦਾ ਤੇ EG ਪੈਰਲਲ ਹੈ AB ਦੇ, ਤਾਂ G ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ DB ਦਾ। ਫਿਰ A ट्रायंगल ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, G ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ DB ਦਾ ਤੇ GF ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ DC ਦੇ, ਤਾਂ F ਕਿਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ CB ਦਾ। समझ आ गया? दोबारा लिख दे करी, पहले लिखांगे अपन E is midpoint of AD, E is midpoint of AD, ये अपन गिवन है। ते जो EG है वो पैरेलल है AB दे, AB अपन गिवन है। सो बाय कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम जो G है वो भी midpoint शो हो जाएगा। G is midpoint of D। एनी गल समझ आ गई? E is midpoint of AD, पहले उसे बैठ करी। पहला E किस दा मिड पॉइंट है AD दा ते EG किहदे पैरेलल है AB दे, ਤਾਂ GB किस दा मिड पॉइंट हो जाऊगा DB दा। ट्रायंगल लिख दियो, इन ट्रायंगल ADB। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ E ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ AD ਦਾ, EG ਪੈरेलल है AB ਦੇ, ਤਾਂ GB ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ DB ਦਾ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A1 ट्रायंगल ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। A1 ट्रायंगल इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC आप लिखेंगे G is midpoint of DB, G is midpoint of DB ते GF parallel DC। so by converse of midpoint theorem, F is midpoint of DC। तो फील कर रहे हो आंसर ता देखते सार हो रहा है, सिर्फ लिखन दे मार्क्स नहीं, आंसर ता लिखते मतलब देखते सार हो रहा है, क्योंकि E इसका मिड पॉइंट है, F नो इसका मिड पॉइंट शो करना है। पहला ट्रायंगल ले लो A वाली, E इस दा मिड पॉइंट है ते EG पैरेलल है AB दे, ता G मिड पॉइंट हो जाऊगा DB दा। अगर G मिड पॉइंट है DB दा ते GF पैरेलल है DC दी, ता F भी मिड पॉइंट हो जाऊगा किदा DC दा। समझ आ गई?